Hi, so welcome to DCA. So it's around 4 to 5 days left for your CDS 2 2020 exam. So what should be the final lap? What should be, you can say that the confident way of getting things revised. So before starting this, which is agenda of today's discussion, what should be the revision checklist? You should check it, make a list of these things, and make sure that you have covered these things at least at an average level, right? So we are going to look over this, but before that, so today we had the CDS mock test. So those students who has appeared for CDS mock, unke liye it will take hardly 30 seconds, right? If your score in CDS GS paper was anywhere more than 19 plus, right, out of 55 question, right, so that means ki you are at par, matlab you will be definitely getting 24, 25, 26 plus in actual exam, right? Because we tried this test with some of the students who has already qualified twice or thrice for the IMA or AFA. उन students से भी हमने पेपर देने को बोला था, right, in an honest manner, right, and their score was around 23, 24 or maybe some of them got 29, 31 as well. But कुछ लोग होते हैं, majority were below this. That means 19 out of this is a good attempt. You are a very good student. Don't worry even if your score is around 17. But anything below 13, 14, you need to little bit revise in a sharp manner, to be honest. Next, for the maths, if your score is more than 18, right, you are wonderful. That means you are doing good. That means it's around 54 question. So it was good enough, because the students who have been who have appeared for the SSBs thrice for the IMA, two of the guys, they have scored around 21, one has scored around 19, right? AFA वाले बच्चों ने 22 किया है. That means we are comparatively conveying you that thing, that if your score is anywhere between 16 plus, that means you are on a good track. You will be doing good within the stipulated time in actual CDS exam. English paper, we have shared you the PDF, and that was basically ये दोनों ऑनलाइन थे. इंग्लिश का हमने आपको PDF दिया, दैट वाज मोर और लेस बेस्ड अपॉन ग्रामर, क्लोज टेस्ट, फ्रेजेस, इस टाइप से थे. तो अगर आपके उसमें 35% मार्क्स आते हैं, दैट मीन्स यू विल क्रॉस एटलीस्ट 55% इन एक्चुअल, राइट, बिकॉज वो पूरा पेपर नहीं है, वो ग्रामर बेस्ड है. वी हैव नॉट गिवन कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन डे टू डे. ओके, नेक्स्ट, coming to the things what we should do as a part of the revision checklist. Now in the next 4 days you should not try to cover history exhaustively. If you have already covered class 11 12th history, especially the medieval and the ancient part, themes in history part 1, themes in history part 2, and if you have underlined the things, or maybe you have highlighted something, you feel that yes, I have an image, I just need to recapitulate, then you can do. Otherwise, only thing you can try for the history is the gist, especially modern history gist. And अगर आपने खुद से कोई बना रखा है या फिर आप कोई बुक फॉलो करते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू डू दैट, बिकॉज इफ सम ऑफ द क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, इफ आई एम यूजिंग द वर्ड यूज बिकॉज इट्स रेयर दैट इन यूपीएससी दे आर आस्किंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन हिस्ट्री, then at least you should not feel disadvantageous that okay, it was easy question, I could have done. So try to be aware of all the acts, right, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जितने हुए, राइट, इंडियन काउंसिल एक्ट, सारे कुछ आप उसके ब्रीफ पढ़ लें. जो मॉडर्न हिस्ट्री का जिस्ट जो होता है ना, दैट इज अराउंड 20 to 30 पेज, राइट, जिस्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. एंड अगर किसी के पास वो हिस्ट्री वाली क्वेश्चन बैंक है विच वी हैड शेयर्ड, जो हमने स्टूडेंट्स को दिए थे, अगर आप थे तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं. अदरवाइज आपके पास जो भी है दैट इज गुड इनफ, राइट. नेक्स्ट, मेक श्योर दैट यू हैव कवर्ड साइंस MCQs. आपने साइंस पढ़ा होगा, मे बी एनसीईआरटी और जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस along with some sample questions जरूर पढ़ लें. स्टूडेंट्स हैविंग द बुकलेट्स, आप उसको जरूर रिवाइज करें, बिकॉज थिंग्स फेड अवे वेरी क्विकली. ये बहुत जरूरी है. साइंस इज ए सेवियर, ये आपकी जान बचाएगा, साइंस और करंट अफेयर्स, राइट. ये दोनों चीज बहुत प्रायोरिटी से आपको रिवाइज कर लेना है, बिकॉज दिस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सीडीएस एग्जाम. इसका आंसर या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, right. And if you have done, you have still some time left, go for the Indian geography, because this year in exams, if you look upon that, even in civil services and even in NDA exam and whatever UPSC has conducted this year, they have focused upon Indian geography, especially agriculture related concepts, right.
सो जस्ट आई एम जस्ट सेइंग एज अ पैटर्न, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये बात इसमें भी हो, बट आप इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा फोकस कर लेना एप्लीकेशन पार्ट को। एप्लीकेशन मतलब वेजिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एंड इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग कि पूरी फिजिकल जो इंडिया की है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं, सॉइल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट अपार्ट फ्रॉम द यू नो द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट, राइट। जैसा आपने सिविल सर्विस का पेपर देखा, इस पे जरूर वर्कआउट कर लेना है, बिकॉज दिस थिंग्स विल गिव यू out of this current affair, physical geography, Indian geography and science. I am not mentioning the word polity. मैंने आपको polity नहीं बताया because polity is quite wide. अब तक आपने कर लिया होगा, 3 दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, जो किया होगा आपने कर लिया होगा। अगर आपके पास कुछ नोट्स हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस बैंक हैं, तो आप उसको रिवाइज कीजिए, राइट। दैट्स व्हाई आई ट्राइड इट टू अवॉइड इट। एक डायनामिक पॉलिटी की बुकलेट, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनको हमने डायनेमिक की कुछ पॉलिटी के बुकलेट्स आपको कल सुबह तक आ जाएगी, आप उसको देख लें। दैट इज करंट रिलेटेड एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आप उसको बस एक बार पढ़ लें। दैट इज काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस और यू कैन से दैट चेकलिस्ट बूस्टर्स, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज इंग्लिश। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्कोर 65 प्लस इन इंग्लिश, राइट। ऐसे काफी बच्चे हैं जो शायद 55 लाते हैं, जीएस में भी 45 लाके क्वालिफाई तो कर रहे हैं, दैट्स गुड, बट मेजॉरिटी because it's difficult to score 50 in GS, so I am targeting those students। ये उन लोगों के लिए बात है जो समझते हैं कि नहीं हम 30-35 के बीच में रहेंगे GS में, तो आप कोशिश जरूर करना कि आप इस स्कोर को क्रॉस करें, राइट। कैसे? आप एक ना कोई भी प्रीवियस ईयर मॉक ले लो, मतलब एक्चुअल पेपर आप डाउनलोड करो, डोंट गो फॉर द ऑनलाइन काइंड ऑफ थिंग, ट्राई टू डाउनलोड द एक्चुअल पेपर फ्रॉम द इंटरनेट। यूपीएससी की साइट पे है, ऑफिशियल पेपर लो, घर ही रखो सामने, और आप खुद से पेपर करना आप विद इन टाइम, राइट। और बाद में ऑफिशियल आंसर की से मैच करना, राइट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ आंसर कीज ऑफ द कोचिंग, हमारी हो चाहे जिसकी भी हो, यूपीएससी आंसर की और एक्चुअल में बहुत फर्क होता है, राइट। सो ट्राई टू वेरीफाई इट फ्रॉम द ऑफिशियल आंसर कीज एंड चेक योर स्कोर, दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आप इन दोनों में से कोई एक पेपर कर लें और ग्रामर पोर्शन पे फोकस रखें, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द यू नो द थिंग्स यू हैव डन अर्लियर, राइट। सो मिनिमम इतना आप जरूर करें। मैथ्स के लिए I cannot give you tips for the last moment because maths is gradual, right? जो भी फॉर्मूला एप्लीकेशन है अब तक आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, so I'm sure that कि मैथ्स में जो भी करना होगा it has been done for this time being and you will definitely have a good score in mathematics. So that's all we wanted to convey. Thank you, all the best. Any question, queries, do write us at 7710548960. Good luck.